अच्छा, yesterday we started bonding in carbonyls. कार्बोनेल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है. Carbonyls are comprised of carbon and oxygen. The both the elements and their orbitals, they overlap with each other to produce the molecular orbitals. Like, for example, we talked about this, that atomic orbitals of oxygen are located a little bit lower than the atomic orbitals of carbon because of the electronegativity. उसकी वजह से इसकी ऑर्बिटल्स जो हैं थोड़े से लोअर होते हैं. Now, the atomic orbitals of oxygen, they contain 1 2 3 4 5 6 इन्होंने शो किए, बाकी तो खैर वो दो और भी हैं लेकिन वो नहीं शो की. और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. When they overlap, so you are getting these molecular orbitals. इनमें जो सबसे important orbitals हैं वो हैं sigma star orbital which is filled, and pi star orbital which are empty. The difference between sigma star and pi star orbital, this is not so much big. मतलब ये difference इतना ज़्यादा नहीं है. तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन as a result ये मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकते हैं and can be accommodated in these pi orbitals. सही है. So what happens in carbon monoxide, that you are having 1 sigma 1 pi. ठीक है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई. आपको फिर से ले जाऊं वापस तो आपको याद आ जाएगा. एक सिग्मा और एक पाई ये हो गए. ठीक है, एंड देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कोऑर्डिनेशन में हिस्सा ले सकता है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वन. ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. So see that there are 3 types of the orbitals which are present in carbon monoxide. One is sigma orbital, one is pi orbital, and one is coordination orbital. Now, formation of sigma bond, the overlapping of empty hybrid orbitals on metal atom with the filled hybrid orbital on carbon atom or carbon monoxide molecule through lone pair electron results into the formation of sigma bond, MCO sigma bond. वो मैंने आपको याद है, ये मैं बता रहा था कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले, ये sigma electrons, they can be donated or pushed toward the metal, which is producing the sigma bond. Formation of pi bond by back donation. अब ये pi bond ऐसा है कि ये मतलब एक तरफ दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो इसका ये of filled d pi orbitals are hybrid dpx dp pi orbitals of metal atom with anti-bonding pi orbitals on CO molecule. यही ऑर्बिटल्स हैं ये मेटल के या तो d ऑर्बिटल्स के साथ या उनके p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं. मतलब मेटल में या तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं या p में. s में तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं करते उनको. जब भी आप मेटल देखते हैं लाइक कॉपर है, सो कॉपर +2 में D9NS2 है, मतलब D9 है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये D9NS0 बन जाता है, और P में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और D में होते हैं. सो the electrons from p orbital or the electrons from d orbital, they may
come in contact with the orbitals, these orbitals, इसको हम कहते हैं pi orbitals, इनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास pi orbital बनता है। लेकिन ये pi bond बनता है। But this pi bond is actually produced by the back donation from the metal d pi or p pi orbitals toward the empty anti-bonding pi orbitals on CO। समझ आ गई है? अगर समझ नहीं आ रही, so I can repeat again. This is very important step. ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। This is just the revision. Sir, please repeat it. मतलब ये है कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम जब तक आपको समझ नहीं आ रही ना, सिंपल सी बात है, जब तक आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ नहीं पा रहे, तब तक आप इसकी बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम ही पहला स्टेप है बॉन्डिंग के लिए। तो आप इसको समझना है, बिल्कुल ऐसे समझना है जैसे इंसान ABC समझता है। तो जब तक आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो तब तक आप इसकी बॉन्डिंग के बारे में बिल्कुल अनअवेयर हैं। देखें, ये साइड जो है, ये साइड, ये पूरा साइड जो है, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दिस इज द पार्ट which is belonging to oxygen atomic orbitals, whereas the right hand side, this is the part which is belonging to the atomic orbitals of carbon। ठीक है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, आपके पास ये ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं, एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है, दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पोस्टुलेट है। सो दिस इज ओवरलैपिंग एंड प्रोड्यूसिंग 2 ऑर्बिटल्स। फिर ये 6 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो बॉन्डिंग होते हैं, ये 3, और 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो ये चीज़ जो है, दिस थिंग इज कि ये आपके पास, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। जब आप इसकी फिलिंग करते हैं, ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 हो गए, तो फिर भी 2 इधर, वो 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन the difference between the pi star empty orbitals and the sigma star orbital, this is very less, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, जब कम होता है तो this is these electrons, मतलब अब कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, they are easily available to be donated toward the metal। ठीक है, जो भी मेटल इसके साथ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये दे रहा है, तो ये NH3 की तरह नहीं है, अमोनिया की तरह नहीं है कि ये एक सिंगल बॉन्ड बना देता है और ये आराम से बैठ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब पुश करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाते हैं से, और इसके ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लोकेटेड हैं, ये भी इसके साथ बहुत क्लोज हैं। इस क्लोजनेस की वजह से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जाते हैं, लेकिन मेटल इसमें ये पावर वापस आ जाती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, उधर मेटल नहीं छोड़ता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा होता है, साथ में पाई स्टार के लिए भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है मेटल के लिए, अपने लिए। सो आपके पास ये सिग्मा का सिग्मा जब वो ओवरलैप कर लेता है मेटल के साथ, सो इट प्रोड्यूसेस the
सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है सो इट प्रोड्यूसेस द पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड किस चीज से बनता है? दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक डोनेशन, मतलब मेटल की तरफ से पाई बॉन्ड बनता है, कार्बोनिल की तरफ से नहीं बनता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय बैक डोनेशन, इसको कहा जाता है। आ गई समझ? हेलो, अच्छा जी। ना अगर आप डायग्रामेटिकली देखते हैं, दीज आर द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स, ठीक है। कार्बोनिल पे ये लोकेटेड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये मेटल की तरफ पुश करता है टुवर्ड द मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। So these orbitals, these electrons are pushed toward the metal atom, लेकिन as a result of this overlap, ये मेटल के ऊपर तो ये ऑर्बिटल्स भी होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं डी ऑर्बिटल्स में। तो और इनके जो ये ऑर्बिटल्स हैं पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ये इनके पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एम्प्टी होते हैं। So they are getting electrons and accommodating them in pi star orbitals. So this is one bond and this is another bond. So आपके पास metal to carbonyl जो है ये कभी सिंगल कभी डबल बॉन्ड शो करता है, ठीक है। मतलब लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्डिंग में जब सिंपल सिग्मा बॉन्डिंग होती है तो उसमें आपको M सिंगल बॉन्ड CO नज़र आएगा, लेकिन जब मेटल टू लिगेंड, मेटल टू कार्बोनिल बैक डोनेशन होती है तो आपको M डबल बॉन्ड CO नज़र आएगा। मतलब मेटल और CO के दरमियान जो है दो बॉन्ड्स होंगे। तो इससे आप ये कर सकते हैं, जब बॉन्ड लेंथ मेटल टू कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर हो तो इसका मतलब होगा कि इधर दो बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब मेटल टू कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्गर हो तो इसका मतलब होगा कि सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना। ब्रिजिंग कार्बोनिल आप कैसे बॉन्डिंग करते हैं? in addition to the linear metal carbonyl, ये जो हम बात कर रहे थे ये सारी लीनियर की बात कर रहे थे। In addition to the linear metal carbonyl groups, the carbon monoxide ligand is also known to form bridges. मतलब ये दो या दो से ज्यादा मेटल एटम के दरमियान एक कार्बोनिल दो या दो से ज्यादा मेटल्स को बॉन्डिंग करता है एट वन टाइम। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग कहते हैं। जब दो मेटल को आपस में जोड़ता है, सो दिस इज कॉल्ड ब्रिज। ब्रिज इज इटसेल्फ अ पाथ, अगर आपको पता हो तो दिस इज connecting the two cities or the two villages together, ठीक है। So this is a kind of two groups are connected to each other. This bonding is observed in some binuclear and polynuclear carbonyls. ये आपको बाइन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स में मैंने कहा, बाइन्यूक्लियर जिसमें दो मेटल होते हैं और पॉलीन्यूक्लियर जिसमें दो से ज़्यादा होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू एन CO, ठीक है। म्यू एन जो है ये एन, इसमें आपको म्यू जो है ये तो ब्रिज शो करता है कि, और एन जो है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मेटल्स ब्रिज्ड, कितने मेटल्स ब्रिज करते हैं। while n is equal to 2 is the most common value, मतलब दो का ब्रिज बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है। it reaches to be 3 or 4 in certain less common carbonyls, मतलब 3-4 तक ब्रिजिंग भी कर सकता है। आप लोगों ने देखा भी बहुत सारे एग्जाम्पल। terminal MCO group, the carbon monoxide donates 2 electrons to an empty metal orbital। मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे
इसमें हमने देखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्लोइंग, तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द सिग्मा ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्लोइंग टुवर्ड द मेटल, ठीक है। तो मेटल में ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जो इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये टर्मिनल की बात हो रही थी। वाइल इन mu2 कार्बोनिल ग्रुप, जब आपके पास ब्रिजिंग हो जिसमें 2 मेटल्स आपस में कनेक्टेड हो, then by sharing of 1 metal electron and 1 carbon electron, मतलब एक मेटल को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तब समझ आ रही है? Please, if you are not understanding, you may respond. Anybody सर जिसको इसका समझ नहीं। लेकिन जो जी, एक बंदा एक टाइम पे बोले तो जी। जी, एनीबॉडी। ये एक मिनट से एक नहीं आया, समझ नहीं। आपके नौमान साहब, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसे गूंज रही है, ऐसा लग रहा होता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं है आपकी आवाज़ की। थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, सर देखें जी, जी। सर ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये मेटल और कार्बोनिल के दरमियान, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स? मतलब शेयरिंग तो नहीं होते है ना, कंप्लीट ट्रांसफर होता है मेटल टू कार्बोनिल। हाँ, लेकिन अब इसमें इसमें और कोऑर्डिनेशन में ये फ़र्क होता है कि कोऑर्डिनेशन में आपको कंप्लीट ट्रांसफ़र नज़र आता है ना, लेकिन ये यस सर। कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। ये कंप्लीट ट्रांसफ़र इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जब आप अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं मेटल की तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम कार्बोनिल फिर से इसको वापस खींचने की कोशिश में लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन में तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से फ्लो करते हैं, ये तो दोनों तरफ से फिर फ्लो हो रही होती है, मतलब वापस खींचने की कोशिश में लगा होता है। तो दिस बिहेवियर इज एक्चुअली ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर आपको याद हो, बिहेवियर सारा कोवेलेंट बॉन्डिंग का होता है, वो आपस में शेयरिंग करते हैं एंड दिस शेयरिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ काइंड ऑफ शेयरिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन है, लेकिन उस टाइप की कोऑर्डिनेशन नहीं है जो कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलती है, ठीक है। अब यस दो सर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर एक मेटल अटैच्ड होता है ना, ये फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। यू मे सी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं एक मेटल अटैच्ड होता है तो दोनों के दोनों एक मेटल की तरफ जाते हैं, लेकिन जब 2 मेटल्स अटैच्ड, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। नाउ if a single metal is attached, both the electrons go toward one metal. लेकिन अगर एक साइड पे एक हो मेटल और दूसरे साइड पे दूसरा हो और बीच में सिर्फ कार्बोनिल हो, so you will see that one electron will go toward one metal and the other electron will go toward other metal. तो यही बात हो रही थी। ये देखें, जो ये बात कर रहे थे ना, ये यस सर, समझ गए। जी। तो ये टर्मिनल कार्बन मेटल कार्बोनिल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं, while in mu2 CO group
The MC bond is formed by sharing of one metal electron and one carbon electron. मतलब एक मेटल का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके आपको बॉन्डिंग बनाते हैं. अब अगर मेटल टू मेटल बॉन्ड बन जाता है, in some carbonyls another bond develops between metal due to weak overlap of the two singly filled appropriate hybrid orbitals. कभी कभार ऐसे भी होता है कि ब्रिजिंग में कि एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, एंड यू आर सीइंग दिस ब्रिज. So in bridging carbonyls you are seeing this कि एक कार्बोनिल जो है एक मेटल को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे मेटल को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है. लेकिन अब मेटल के पास ऐसे अप्रोप्रिएट ऑर्बिटल्स होते हैं कि वो आपस में भी ओवरलैप कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना देते हैं. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड मेटल टू मेटल बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल सिंगल बॉन्ड एंड लॉन्गर देन नॉर्मल सिंगल बॉन्ड. दिस बॉन्ड मेटल टू मेटल बॉन्ड जो है ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से ये लॉन्गर होता है. ये फिर बाद में पढ़ लेंगे. अभी आप लोग ऐसे करें अपनी अटेंडेंस के लिए, ऐसे करें मैं इसको बंद कर देता हूँ ना, इस कॉल को आप लोगों को लिंक फिर से भेज देता हूँ, आप लोग उस लिंक पे LMS के थ्रू ज्वाइनिंग कर दें ताकि आप लोग की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो.